Good morning, students. Uh, Today I'm going to tell you about the stem cell assays or techniques. Why these are important? We were talking about stem cell characterizations before, but to characterize any stem cell, we need cellular and molecular tools, or we need to perform various experiments which will confirm that this is whatever we are testing is a stem cell. Confirmation कैसे होगा? It should be pluripotent. It should have proliferation capacity. Its protein levels are checked. Gene expression profile is checked. Epigenetic factors are checked. This is how we check that stem cells are uh, can we use these stem cells for further requirement in medicine or any other field where stem cells are of any use. So their functionality or potentiality must be checked. So exact properties which should be checked for confirming their functionality or potentiality are invasive capacity. Invasive capacity की क्या जरूरत है? Stem cells should be said that they penetrate or they invade in the injured tissue of the body. तो पता रहना चाहिए कि वो उनमें invasion की property है कि नहीं है. And this is done by Boyden chamber uh, test or transwell invasion assays. Another technique, one name is electric cell substrate impedance sensing device. तो इससे भी चेक किया जा सकता है कि वो इन्वेट कर सकते हैं कि नहीं. फिर और क्या चीजें हैं जो उनमें देखी जाएंगी? सेलुलर मॉर्फोलॉजी देखी जाएगी, सेल फिनोटाइप देखा जाएगा, दैट इज सेल सरफेस मार्कर एक्सप्रेशन which is found out by using immunohistochemical staining. Then how many stem cells are actually viable? From morphology, under microscope we can say that this is a stem cell. Still, is it viable? It is live, or it is pluripotent, it can proliferate, and all these things should be checked beforehand, uh, before we can use them for any human benefit. So likewise, the colony growth should be checked, whether they can form colony forming units must be checked. Reverse transcription से उनका डीएनए वगैरह का प्रॉपर्टीज, उनकी जीन सही प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ये देखा जाता है. इन विट्रो एंजियोजेनेसिस मस्ट बी चेक्ड. टी सेल प्रोलिफरेशन एसेज आर डन कि उनके अगेंस्ट किस तरह के इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्सेज हो रहे हैं. प्लस HOX जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल इज डन बाय फिंगरप्रिंटिंग. तो फिंगरप्रिंटिंग करके देखा जाएगा कि उनकी फंक्शनैलिटी और पोटेंशियलिटी क्या है. उनकी एडिपोजेनिक जीनिक, ऑस्टियोजेनिक, chondrogenic differentiation assays, all these should be done before using them for any medical use. और इस सब के लिए ऐसे क्या प्लान किया जाएगा, टेक्निक कौन सी ली जाएगी? लाइक फैक्स है, फ्लो साइटोमेट्री है, और ट्रांसप्लांटेशन के लिए डिफरेंट जो टूल्स एंड टेक्निक्स एंड प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं उनको यूज किया जाएगा. Some general methods which are used for determination of cell strain and cell line characterization are given below. तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि सेल लाइन क्या है. तो जब हम किसी सोर्स से हम सेल्स लेते हैं और कल्चर में उनको ग्रो करते हैं, तो दैट इज नोन एज प्राइमरी कल्चर.
प्राइमरी कल्चर से डायरेक्टली जब फर्स्ट पसाज होता है, फर्स्ट टाइम उनको नए कल्चर सिस्टम में डाला जाता है, तो दैट बिकम्स अ सेल लाइन. Cell lines are cultures of animal cells that can be propagated repeatedly and sometimes indefinitely. अब इस सेल लाइंस की प्रॉपर्टीज और वो आगे चल के क्या करते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, वो ग्रेजुअली हम देखेंगे. फिलहाल हम आपको डिफरेंट टेस्ट के बारे में बता रहे हैं जिनसे कि उनको कैरेक्टराइज किया जाएगा. तो कैरियोटाइप यानी कि उनके क्रोमोसोम्स की क्या कंडीशन है, दैट कैन बी सीन बाय क्रोमोसोम स्प्रेड प्लस क्रोमोसोम बैंडिंग. पहले क्रोमोसोम का एक स्प्रेड बनाया जाएगा, देन उनका बैंडिंग पैटर्न देखा जाएगा, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी सेल, किसी भी एनिमल सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है. उसको क्रोमोसोम्स की कंडीशंस को चेक करने को कैरियोटाइपिंग कहते हैं. देन आइसोएंजाइम एनालिसिस. आइसोएंजाइम्स एक ही वैरायटी के एक ही एंजाइम जब डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट्स में रहता है और सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, तो दैट इज नोन एज आइसोएंजाइम. और आइसोएंजाइम की एनालिसिस भी ये बताती है कि वो किस पर्टिकुलर टाइप का सेल है, और उसके लिए वी डू अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सेल सरफेस मार्कर्स और एंटीजेंस के बारे में जैसे कि पहले भी हमने बात करी कि सेल सरफेस पे हर सेल पे कुछ कॉमन मार्कर्स होते हैं एक बॉडी में, और कुछ उनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जो एंटीजेंस के फॉर्म में वो सरफेस पे होते हैं. प्लस ये ऑर्गन टू ऑर्गन भी वेरी करते हैं. तो किस ऑर्गन से हमने सेल्स लिए हैं, वो पर्टिकुलरली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से पता चलता है. फिर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर कैसा है, वो इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री से पता चलेगा. और वहां पे एंटीबॉडीज विल बी यूज्ड to specific cytokeratins. Cytokeratins are the proteins which are present or which make up the cytoskeletons along with some other proteins also. So this is a specific, and for that specific antibody can be uh, produced, and that will check that which type of cell we are studying. सिमिलरली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है, जिसमें की टेक्निक्स यूज होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट, पेज पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करना पड़ता है, और सैटेलाइट डीएनए प्रोब्स यूज होते हैं. डीएनए प्रोफाइल्स की जाती हैं जिनसे कि सेल के बारे में पता चलता है कि किस तरह का सेल है. फॉर दैट पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑफ माइक्रोसैटेलाइट रिपीट्स इज डन. ये कुछ एग्जांपल्स हैं टेक्निक्स के जिनसे कि हम ये क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं और उनके बारे में पता चलता है. दिस इज हाउ वी जज whether we can use a particular cell in vitro or in vivo or not. So in the next few lectures I will be taking up these techniques. I will be telling you about the principle and methods of these techniques. If you like my lecture, try and please continue to see my lectures. And if you like it, then share it, like it, and subscribe it. Thank you.